Assalamualaikum, grade 7th. How are you all? I hope that you all are safe and sound. Grade 7, this is your English lesson, and today we'll be doing the second part of our winter poems, that is on page number 36. So open your English books at page number 36 and go to the topic winter poems, and today we'll be doing the second poem, Moses Come Walking. Okay, so first of all we will read it out from head to toe, and after the reading I'll explain it to you. Let's get started with the reading, but before reading I want your fingers on the text, and when I start reading you also start reading it with me. Okay, let's start the reading. Moses come walking. Moses come walking over the hill, up over the hill. Moses come walking, they rarely stand still. When Moses come walking, they walk where they will, and Moses come walking up over the hill. Moses look into your window at night. They look to the left and they look to the right. The Moses are smiling and they think it's a zoo. That's why the Moses like looking at you. So, if you see Moses while lying in bed, it's best to just stay there pretending you are dead. The Moses will leave and you will get the thrill of seeing the Moses go over the hill. Okay, grade 7, this was the reading, and jumping to the explanation. So this poem is about an animal called mooses. Moose, basically. Now you can see the moose in the picture. Now what are moose? Moose is a kind of very large deer. Hiran की एक किस्म है, and it is so big in size that it can be compared to the size of a small car, you can say. एक छोटी सी गाड़ी के जितना साइज़ होता है इसका, नैनो भी नहीं लेकिन जो ऑल्टो वगैरह होती हैं उसके जितना साइज़ होता है इनका. एंड दे आर डियर्स, हिरन होते हैं ये, and they are found in the colder parts of the world, for example America, Europe, and North America, basically Europe, and certain parts of the Asia which are colder. ठंडे इलाके, बर्फीले इलाके में ये रहते हैं. ये जो हिरन होते हैं ज़्यादातर ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और एशिया में होते हैं. and they love to be in the winter, they love to be in snow. Okay, so this whole poem is about mooses. Okay, and the poet is basically the writer of this poem is a folk song writer. ये जो poem, ये जो नज़म जिस शायर ने लिखी है वो जो है वो songs लिखता है, folk songs लिखता है वाइट पीपल के लिए, इंग्लिश मैन के लिए. जो अंग्रेज़ होते हैं उनमें फ़ोक सॉन्ग्स का एक रिवाज है, जो उनके रिवायती गाने होते हैं, और वो रिवायती गाने लिखता था ये जो जिन्होंने ये नज़म लिखी है. और दिस इज़ अ पोएम बट इट इज़ समहाउ लाइक अ सॉन्ग because we have a lot of we have a lot of rhymes here, and some sentences are repeated, and so it feels like a song, right? And this poem is about moose, a kind of animal. तो यहाँ पे जितनी भी discussion है वो इसी animal के बारे में है. So now coming to what the topic says. Mooses come walking. जो mooses हैं, हिरन है, वो चलते हुए आ रहे हैं. So yes, basically I want to tell you a thing of grammar. ये जो mooses यहाँ पे लिखा गया है ये हिरन की जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है कि बहुत सारे mooses, but actually mooses का जमा moose ही है. There is no need of adding the s to the moose to show that it's plural.
ठीक है। कुछ वर्ड्स के जो प्लूरल होते हैं हम उसके साथ एस नहीं लगाते, जैसे कि शीप हो गया, चाहे वो एक है चाहे वो बहुत सारे हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल सारा शीप ही होता है, उसके साथ एस नहीं लगाया जाता। तो मूव्स के साथ भी एस नहीं लगाया जाता, बट दो दिस इज़ द पोएम। और नज़म या जो लिटरेचर होता है इसमें कभी कभी कुछ कुछ शायर जो होते हैं उनका दिल नहीं चाहता कोई रूल फॉलो करने का, तो वो नहीं करते, एंड दैट्स वाई ही एडेड एस विद इट, बट एक्चुअली देयर इज़ नो नीड टू ऐड एस विद अ मूव्स टू मेक इट प्लूरल। ठीक है, उसको जमा करने के लिए हम उसके साथ एस नहीं लगाते, बट since here it is used, but if you are using the word moves in a plural form you don't have to add an s to it. Okay, so coming back to our main idea, Moses come walking, जो Moses को बारासिंगा भी कहा जाता है, but बारासिंगा is also kind of small heron, और ये जो मूज होते हैं ये किस्म का बहुत बड़ा बारासिंगा होता है, they are very good large in size. Okay, coming to the explanation, Moses come walking up over the hill. Moses चलते हुए आ रहे हैं, come walking चलते हुए आ रहे हैं, up over the hill पहाड़ पे चलते हुए Moses या जो हिरन है वो आ रहे हैं। अगर मैं हिरन बोलूँ तो आपने माइंड में वो वाला हिरन नहीं लेके आना, अपने माइंड में ये वाला हिरन लेके आना है, बारासिंगा टाइप जो बड़ा है, राइट। तो वो चलते हुए आ रहे हैं, पहाड़ पर चलते हुए वो आ रहे हैं। Moses come walking, Moses चलते हुए आ रहे हैं। They rarely stand, rarely means कभी कभार या बहुत कम, ठीक है। रेयरली होता है जब वो कोई काम बहुत ही कम चांसेस हो उसके, 1 2 3 4 5% चांसेस हो उसकी चीज़ के, सो दैट मीन्स दे रेयरली स्टैंड। ये जो हिरन होते हैं, ये जो बारासिंगे होते हैं, ये बहुत ही रेयरली रुकते हैं, खड़े होते हैं। यूजुअली व्हाट दे डू इज़ दे ऑलवेज वॉक, ओके, वो हमेशा चलते ही रहते हैं, जस्ट लाइक यू ऑल किड्स, कि आप ऑलवेज यू आर डूइंग समथिंग, आप कभी आराम से नहीं बैठते। सो सेम इज़ द केस विद Moses, that do not stand, or they stand for a very short time, but what did they do? They walk all the time. When the Moses come walking, when मतलब जब वो जो हिरन होते हैं वो चलते हुए आते हैं, they walk, वो चलते हैं, where they will, जहाँ पे भी उनको चलना होता है या जहाँ पे भी वो चलना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ उनकी मर्ज़ी होती है वो बस चलते ही रहते हैं, वो खड़े नहीं होते, वो रुकते नहीं हैं, वो आराम से नहीं बैठते, दे जस्ट ऑल द टाइम दे आर वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग। Moses look into your window at night. Moses look, मूज जो होते हैं वो देखते हैं, into your window, आपकी खिड़की में, at night, तो रात के वक्त, in case you are sleeping and you have your windows wide open, and the windows are open to the outside, बाहर की तरफ अगर आपकी खिड़कियां हैं, and you have an open area outside your home, so that can look into your window. It cannot happen there, यहाँ पे it cannot happen here, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात है there are no Moses over here, यहाँ पे मूज नहीं है, और दूसरा ये कि हमारी खिड़कियाँ बाहर की तरफ नहीं खुलती, घर के बाहर की तरफ नहीं खुलती, बिकॉज़ हम थोड़ा प्राइवेट रहते हैं, हमारे यहाँ पे घर एक प्राइवेसी होती है घरों की, तो इसीलिए हम खिड़कियाँ बाहर की तरफ नहीं खोलते। बट वेस्ट साइड पे, यूरोप साइड पे, अमेरिका साइड पे, या जो आप कह लें कि जितने भी थोड़े से ओपन माइंडेड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे, नॉट यू कैन से ओपन माइंडेड, आई एम सॉरी, लेकिन वो कंट्रीज़ जहाँ पे विंडोज़ जो बाहर की तरफ खुलते हैं और वो जो शीशे की होती हैं, तो उसमें मूज़ आके रात को आपकी खिड़की के अंदर देखेंगे कि क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। यस, सो दे लुक टू द लेफ़्ट एंड दे लुक टू द राइट, और खिड़की के अंदर देखते देखते हुए वो लेफ़्ट राइट देखेंगे, आपके घर का जायज़ा लेंगे। दे विल बी थिंकिंग दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, क्या बनाया है, घर में कितने लोग हैं। दिस ड्यूटी इज़ डन बाय द मूज, राइट। तो वो आपकी खिड़की में झांक के आपके घर के अंदर देखेंगे, और वो
लेफ़्ट और राइट यानी दाएं और बाएं देखेंगे, एंड दे विल ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करेंगे। द मूजेज आर स्माइलिंग, और वहीं पे दैट मूज, वो जो हिरन होंगे वो हंसना शुरू कर देंगे। दे विल स्माइल, दे विल फील गुड, दे विल बी हैप्पी, दे थिंक इट्स अ जू। दे विल बी हैप्पी, दे विल बी स्माइलिंग बिकॉज दे विल थिंक दैट ये देखो ये तो कोई ज़ू की तरह है। डू यू नो ज़ू, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर चिड़िया का घर नहीं होता। चिड़ियाघर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल स्टोर्ड। तो ऐसा होता है, चिड़ियाघर की एक जगह होती है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स को बंद रखा जाता है और ह्यूमंस जाते हैं और उन एनिमल्स को देखते हैं। आई होप यू हैव सीन ज़ूज़ बिकॉज़ बहुत ही आम से इंटरटेनमेंट का एरिया होता है। पाकिस्तान का तकरीबन सबसे अच्छा ज़ू जो है वो लाहौर में लोकेटेड है, एंड आई हैव सीन वहाँ पे हिप्पोपोटामस भी था, एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एनिमल, and they were having some good variety of snakes, and वहाँ पे एक पिंक डॉल्फिन भी उन्होंने रखी हुई थी जो कि फिर अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के हिसाब से चल ना सकी और वो मर गई थी। और आई थिंक वहाँ पे एक शेर भी था जो कि मर चुका है। आई it's a news from 3 years back, but whatever, we do have zoos, and you must have seen one। अगर नहीं देखा तो अपने जो सवात का ये जो फिज़ागट पार्क है वहाँ पे एक छोटा सा ज़ू है वेयर यू कैन सी पीकॉक्स, एंड इस तरह की कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे देखने में मिल जाएंगी, सो यू कैन विज़िट। बहुत ही छोटा सा ज़ू है वो। तो इस तरह मूज़ को भी लगता है, जब वो खिड़की के अंदर देखता है तो वो हंसने लगता है। ही स्टार्ट टू स्माइल। वाई? बिकॉज ही इज़ थिंकिंग दैट इट्स अ ज़ू, ये कोई चिड़ियाघर है, बिकॉज एनिमल्स अंदर बंद है घर में, and the moose is outside and he's going here and he's going there, और वो सारे animals को देखता जा रहा है। तो he thinks that there are this is some zoo, okay? That is why the moose is like looking at you, और यही वजह है कि जो मूज होते हैं वो पसंद करते हैं तुम्हें देखना, ठीक है, बिकॉज दे थिंक इट्स अ जू। जैसे हम पिंजरे में बंधे हुए शेर को देख के खुश होते हैं ना कि वो देखो शेर है, एंड वी आर सेफ, एंड हम प्रोटेक्टेड होते हैं उनसे क्योंकि वो अंदर बंद होते हैं, एंड वी स्माइल एट देम। सिमिलरली मूज जो होते हैं वो घर में बंद इंसानों को देखते हैं, and they feel good about it, and they start loving the feeling of looking at you। वो आपको देखते हुए वो खुश होते हैं, वो पसंद करते हैं आपको देखना, okay? that is why, इसीलिए। so if you see mooses while lying in bed, so means तो if you see, अगर आप देखते हो मूजेस को while lying in bed, अगर आप बेड में लेटे हुए हो, ठीक है, और आप खिड़की से बाहर देखते हो, in case you are trying to sleep at night and you are in your bed and you are looking out of the window and suddenly you see that there is a moose standing outside। आप लेटे हुए हो अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रहे हो, रात है, और आप खिड़की में देखने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे एक मूस खड़ा है, lying in bed, बेड में लेते हुए। इट्स बेस्ट, ये बेहतर होगा टू जस्ट स्टे देयर, कि आप वहीं पे ही रहें, यानी हिलने डुलने की कोशिश ना करें, उठकर खिड़की के पास आने की कोशिश ना करें या उठने की भी कोशिश ना करें। यू स्टे देयर, आप उधर ही रहें बगैर किसी हरकत के। प्रिटेंडिंग, और ये एक्ट करें, एक्टिंग करने की कोशिश करें that you are dead, कि तुम मरे हुए हो, right? This whole of the sentence means that act like if you are dead। बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करनी है आपने कि आप मरे हुए हो, आपने हिलना नहीं है, बेड से नहीं उठना, शोर नहीं मचाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। प्रिटेंडिंग मीन्स टू एक्ट, ठीक है, यानी झूठ मूठ का बर्ताव करें, ठीक है। द मूजेज विल लीव, और मूजेज फाइनली, वो जो मूज है वो खिड़की में देख देख के तंग आ जाएगा, एंड ही विल लीव, और वो चला जाएगा। एंड यू विल गेट द थ्रिल, और आपको
मिलेगा मज़ा। थ्रिल मीन्स जो एडवेंचर होता है, जो थ्रिल जो है उस फीलिंग को कहते हैं जब आपको सडनली बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है ना। कोई झूला झूलते वक्त वो कितनी अचानक सी खुशी होती है और हम बहुत खुश होते हैं उस चीज़ को लेके, एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वी आर हैप्पी। तो अगर हम बेड में लेटे रहें उसी तरह और मूजेस जो है वो जाने लगे, तो हमें मिलेगा, यू विल गेट, आपको मिलेगा द थ्रिल, वो मज़ा ऑफ सीइंग, देखने का, द मूजेस विल गो ओवर द हिल, कि वो देखें मूज वापस पहाड़ पे चढ़ के वापस वो जा रहा है। ठीक है, गो ओवर द हिल यानी पहाड़ के ऊपर से जाना। तो आपको एक मज़ा मिलेगा ये चीज़ देखने में कि मूजेस जो है वो वापस जा रहे हैं, राइट। सो दैट वाज इट एंड दिस पोएम वाज क्वाइट फनी फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एक तो ये है कि वी हैवंट सीन मूव्स इन द रियल लाइफ, बट स्टिल मज़ा इसीलिए आया क्योंकि इट वाज वेरी इन्जॉयबल, बिकॉज हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिले कैसे होते हैं मूजेस, क्या करते हैं, वो चलते रहते हैं, घरों में झांकते हैं एंड they will leave, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं and it was fun to read it. So that was it, grade 7. Coming to your word meanings, mooses, world largest deer, दुनिया का सबसे बड़ा हिरन, बारासिंगा भी इसको कह सकते हो आप, हिरन भी कह सकते हो, लेकिन ये साइजेस में नॉर्मल हिरन या नॉर्मल जो बारासिंगा होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है। रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, कभी कभार, बहुत ही कभी कभार, यानी जो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, साल में 1 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा, इस तरह से कह लें। ज़ू, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर शोकेस्ड। ज़ू चिड़ियाघर को कहते हैं या एक जगह जहाँ पे एनिमल्स को बंद करके लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। लाइंग, इन रेस्ट पोजिशन, लेटे रहना। स्टे, नॉट मूविंग, हिलना नहीं या वहीं पे रुके रहना। प्रिटेंडिंग, एक्टिंग, जानबूझ के कुछ बर्ताव करना। थ्रिल, सडन फीलिंग ऑफ प्लेजर, वो खुशी जो कि हमें बिल्कुल एकदम अचानक से आए या जिसको मज़ा कहते हैं, एडवेंचर कहते हैं। That's it, grade 7. I hope you enjoyed. Till the next lesson, you have to take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, wash your hands properly and stay safe. Allah Hafiz, grade 7.